یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بہار میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے تحت کل 122 اسمبلی حلقوں میں ڈالے جا رہے ہیں ووٹ۔ بڑگام اور نگروٹا اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا IIT بھلائی میں سالانہ کنوکیشن سے خطاب۔ اختراعیت اور جدیدیت کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر دیا زور۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعلیٰ تعلیم اور اختراعیت کے شعبوں کو مستحکم کرنے کا دہرایا عزم۔ اور سائنس کا عالمی دن آج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں کل 20 اضلاع میں پھیلے 122 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پرامن، آزادانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ اس مرحلے کی پولنگ کے لیے وہاں 45,000 سے زائد پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں 3 کروڑ 70 لاکھ رائے دہندگان 1,302 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ادھر کل ہی جموں کشمیر کے بڑگام اور نگروٹا اسمبلی حلقوں میں بھی ضمنی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ ان دونوں حلقوں میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے سلامتی سمیت تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ چناؤ عملے اور مواد کو پولنگ مراکز تک پہنچایا گیا ہے۔ بڑگام سے ہمارے نمائندے شوکت شاہ نے خبر دی ہے کہ بڑگام حلقے میں 1,26,025 ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ رائے دہندگان کی سہولت کے لیے 173 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اس حلقے میں 17 امیدوار اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں، جن میں نیشنل کانفرنس کے آغا سعید محمود، PDP کے آغا سعید منتظر مہدی، BJP کے آغا سعید محسن، عوامی اتحاد پارٹی کے نذیر احمد خان، اپنی پارٹی کے مختار احمد ڈار اور عام آدمی پارٹی کی دیبا خان شامل ہیں۔ نگروٹا اسمبلی حلقے میں رائے دہندگان کی لگ بھگ تعداد 98,000 ہے اور اس حلقے میں 10 امیدوار چناؤ لڑ رہے ہیں، جن میں BJP کی دیویانی رانی اور نیشنل کانفرنس کی شمیم بیگم شامل ہیں۔ سابق وزیر ہریش دیو سنگھ بھی نگروٹا حلقے سے پہلی مرتبہ چناؤ لڑ رہے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے اس حلقے کے لیے 150 پولنگ مراکز قائم کیے ہیں۔ دریاسنا بڑگام کے ضلع الیکشن آفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بڑگام میں قائم کیے گئے ڈسٹریبیوشن اور کلیکشن سینٹر کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ملازمین پر زور دیا کہ وہ مزید تندی اور لگن کے ساتھ کام کر کے شفاف چناؤ کے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ اختراعیت کے جدید تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ آج IIT بھلائی چھتیس گڑھ میں سالانہ کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے LG نے ملک کی صنعتی ترقی میں IIT بھلائی کے اہم رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے نے تکنیکی تعلیم کے منظرنامے کو نئی جہت دینے میں بھی اہم رول نبھایا۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ صنعت کاری کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی اور تکنیکی اقدار کو ملک کی مجموعی ترقی کے صحیح ذرائع میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ آج اس دیکشانت سماروہ میں جو گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس پروفیشنل دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کا پراتھمک ادیش میں سمجھتا ہوں کہ راشٹر کے جیون کو بہتر بنانا ہونا چاہیے اور کٹنگ ایج انوویشن کے دوارا بھارت کی اکانومک گروتھ کو نئی طاقت پردان کرنا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کا دوسرا ادیش انڈسٹری اور راشٹر کو آگے بڑھانے کے لیے سمسیاؤں کو انوویٹو اور ایفیشینٹ طریقے سے حل کرنا بھی ہے، اس کے نئے سمادھان بھی پرستت کرنا ہے۔ آپ کا تیسرا ادیش ریئل ورلڈ کی چنوتیوں کا سمادھان کرنے والے ٹولز تیار کرنا بھی ہونا چاہیے اور اس کیمپس میں ارجت کیے گئے سائنٹیفک اور ٹیکنیکل نالج کو واستوک سوروپ یعنی ریئل ٹولز میں پریورتت کرنا بھی ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر میں اعلیٰ تعلیم، ہنرمندی، تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں مستحکم کرنے کی حکومت کے عزم کو دہرایا ہے تاکہ نوجوان علوم پر مبنی ایک ترقی یافتہ سماج وجود میں لانے میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ اونتی پورہ میں آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے 20ویں یوم تاسیس تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو دوام بخشنے سے جموں کشمیر کو ترقی کی ایک نئی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔
IUST has also established a benchmark. Given that the progress that I have seen between my previous visits and now is very apparent. It's apparent in the infrastructure that has come up in the university. It is apparent in the faculty and the confidence with which they are approaching the tasks that are being handed to them. And perhaps most importantly, it's apparent in not just the number of students that are enrolled here, but also the quality of the students, their approach to education, their approach to new ideas, their approach to innovative thinking. उन्होंने वहां नव तामीर शुदा वैशो गर्ल्स हॉस्टल को तलबा के लिए वक्फ किया जिसमें 300 तलबा के क़याम की गुंजाइश है। उन्होंने कम्युनिटी रेडियो 91.2 FM और एक टेक एक्सपो का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सालाना रिपोर्ट को भी जारी किया। इस मौके पर मारूफ इदारों और सन्नतों के साथ 6 मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए गए। ज़राअत के वजीर जावेद मड्डार, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, असम्बली अरकान और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो के अलावा कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू कश्मीर में महकमे सियाहत की तरफ से अमलाई जा रही होम स्टे पॉलिसी का जम्मू में मुनक़दा एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक पर जोर दिया कि वो होम स्टे मालिकान के लिए एक मखसूस लोन स्कीम तैयार करें। इस मौके पर बताया गया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 18,500 कमरों पर मुश्तमिल 2,500 होम स्टे महकमे सियाहत के साथ दर्ज हैं। मेहनत रोजगार की मरकजी वजीर ममलिकत शोभा करंदलाजे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बंद पड़े यूनिटों को दोबारा बहाल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि वजीर मौसूफा ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बाद में मौसूफा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है ये देश का सब श्रमिकों को ESIC का सौलभ्य मिलना चाहिए, EPFO पेंशन मिलना चाहिए। इसलिए हम ये श्रम पोर्टल बनाया। ये श्रम पोर्टल में अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा लोग खुद जुड़े हैं। आने वाले दिन में जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर का लड़के लड़कियां एंटरप्रेन्योर होना, ऐसे ही उद्योग भी पाना। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में 60,000 नया यूनिट इधर क्रिएट हुआ है। जम्मू कश्मीर में 550 लाख नया उद्योग सृष्टि हुआ है। विश्वकर्मा योजना में भी इधर 1,80,000 लोग जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान दराबी ने आज किश्तवाड़ में वक्फ रिलीफ एंड रेस्क्यू प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड आवाम का इदारा है और ये प्लेटफॉर्म इदारे में डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करेगा जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद होगी। उन्होंने दरबार असरारिया और दरबार फरीदिया में सालाना उर्स की तकरीबात में भी शिरकत की। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने सड़क ट्रांसपोर्ट और शहराओं की वजारत के इश्तराक से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर काजीकुंड से बानिहाल तक की 16 किलोमीटर लंबी पट्टी के दोनों अतराफ लेवेंडर पौधे लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस प्रोजेक्ट से इलाके की जाज़बियत में इजाफा होने के साथ साथ रोजगार के वसाइल भी पैदा होंगे। इस पहल के बारे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर जबीर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, लेवेंडर जहां एक साइड जो है फार्मर्स की इकोनॉमी के लिए उनकी इनकम के लिए मुफीद है, उसी तरीके से अभी हमने ये ऑब्जर्व किया कि इको टूरिज्म जो है उसमें भी इसका काफी यानी कि रोल है ब्यूटिफिकेशन में। और हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का ये इनिशिएटिव था कि क्यों ना हम ये जो कल्टीवेशन जो है ये नेशनल हाईवे के साथ साथ जो है कल्टीवेशन करवाएं। एक तरफ तो फार्मर्स को फायदा होगा, दूसरी तरफ से नेशनल हाईवे की ब्यूटिफिकेशन के लिए एडवाइस किया कि वी शुड इनिशिएट दिस कल्टीवेशन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट जो है CSIR IIIM जम्मू को दिया। फार्मर्स से KUPM लेके हमने ये 200 कनाल जो है एक पायलट स्केल जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, इसमें कल्टीवेशन हमने स्टार्ट किया है। आज साइंस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस के फवाइद को उजागर किया जाता है। इस दिन की अहमियत के बारे में नई दिल्ली में मुकीम पॉलिसी फ्रेमवर्क एक्सपर्ट इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट डॉक्टर शबिस्तान गफ्फार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
कश्मीर के स्कूलों और कॉलेजेस में अगर साइंस स्टाइलिंग मजबूत की जाएगी, डिजिटल लिटरेसी और स्मार्ट क्लासरूम्स और स्मार्ट बोर्ड, बहुत सारे लेबोरेटरीज को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वहाँ पे जदीद चीजें लाके हम अपने बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देके वो काफी तरीकों से हमारे कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे, इनोवेशन लाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। अगर हम रिसर्च में स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म देख के वो इनोवेट करें तो उसमें अलग अलग साइंस के शोबों में हमारे स्टूडेंट्स जॉब होंगे, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं या अलग तरीके से उनको एक रोजगार भी मिल सकता है। वो गवर्नमेंट को उस लेवल पे काम करने की जरूरत है। स्कूलों को भी, कॉलेजों को भी उस तरीके से बच्चों को मेंटोरिंग करने की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही वाली हुकूमत लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है और हुकूमत का 1 साल गुजरने के बाद भी लोग राहत महसूस नहीं कर रहे हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, अगर 1 साल की आप कारकर्दगी देखिए उमर साहब, उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहां बाइकआउट होता था वहां भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात लोग बहुत तंग आ गए थे। बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी और यही वजह है कि एनसी कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली। लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पे काम कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सूबाई सदर इंजीनियर सबिया कादरी की सदारत में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास मुनअक्द हुआ, जिस दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने अपने मसाइल को उजागर किया। सबिया कादरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों की राहत रसानी के कामों में जुटी हुई है और उनके साथ किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज अखनूर में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग के दौरान तंजीमी उमूर और पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए काम करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान गिरधारी लाल रैना ने इल्जाम लगाया है कि वादी में एक मरतबा फिर बकौल उनके मंदिरों और हिंदू बिरादरी की जमीनों पर गैर कानूनी तौर कब्जा करने और तामीराती सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इस मसले पर काबू पाने में नाकाम हुई है। बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा जम्मू कश्मीर की तरफ से आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के सिलसिले में एक तकरीब मुनअक्द हुई, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और कई दीगर लीडरों ने शिरकत की और बिरसा मुंडा के अक़दार को उजागर किया। जम्मू कश्मीर के एक मारूफ सहाफ़ी, शायर और कलमकार फयाज दिलबर इंतकाल कर गए हैं। अपनी मेहनत, लगन और पेशावराना सलाहियतों की बदौलत मरहूम ने सहाफ़त, अदब और ड्रामा निगारी के शोबे में अपना एक मुनफरिद मकाम बना लिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए बेमिसाल काम किया। कई अदबी और समाजी तंजीमों और शख्सियात ने मरहूम के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवारों के साथ हमदर्दी जाहिर की है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर, न्यूज एडिटर इशफाक अहमद शाह और दीगर अमले ने मरहूम के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है। जिन दीगर शख्सियत और अंजुमनों ने अपने दुख का इजहार किया है उनमें कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मसूदी, आहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन श्रीनगर, सागर कल्चरल फोरम सुकुर पटन, दायरे अदब दलीना बारामुला, दिलशाद कल्चरल फोरम नौगाम, J&K रेडियो टेलीविजन आर्टिस्ट्स, फ्रीलांस प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद, अदबी मरकज कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट शामिल हैं। वादी के एक मारूफ एक्टर और डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद ने फयाज दिलबर को इन अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया। फयाज दिलबर साहब का गुजरना हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, अदब और फनकार की इस दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। फयाज दिलबर साहब को मैं पिछले कोई 35-40 साल से जानता हूँ। एक बहुत ही ज़हीन इंटेलेक्चुअल, शायर, राइटर और फनकाराना जो एक्टिविटी है उसमें मेरा इनके साथ जो काम इकट्ठा हुआ या मुलाकातें हमारी हुई वो हुई फिल्म डायरेक्शन के बारे में। हमने 1993 में टूरिज्म के लिए काम किया इकट्ठे। इन्होंने ब्रोकपाज ऑफ लद्दाख पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैंने श्राइन्स ऑफ कश्मीर पे बनाई। तो उन दिनों हमारी मुलाकातें अक्सर होती थी क्योंकि टूरिज्म में काम करते थे। उसके बाद दिल्ली दूरदर्शन के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया, डीडी उर्दू के लिए, डीडी कल्चर के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्शन बनाई, मैंने भी बनाई। तो हमारा वहाँ पे उठना बैठना साथ होता था। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे फनकार, और कश्मीर फ्रेटर्निटी, आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनके गुजर जाने से।
दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक बैन रियासती टेरर मॉड्यूल तश्त अज़बाम किया है। इस टेरर मॉड्यूल का ताल्लुक ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों जैश मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद से बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों में अमल में लाई गई कार्रवाई के तहत कई अहम ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार करके काफी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने बारामूला में भी दहशत पसंदी के इयानतकारों और इसके बुनियादी ढांचे को खत्म करने की गरज से कई मकामात पर कार्रवाई अमल में लाई। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए आज अनंतनाग और पुलवामा से 5 ड्रग स्मगलरों को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। चुरमुजरू बीरवा बडगाम में पुलिस ने रऊफ अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर का 44 लाख रुपए मालियत का जेर तामीर रिहायशी मकान अटैच कर दिया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन में पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मनशियात बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया। पुलिस ने कुलगाम में आज दहशतगर्दी के निजाम को खत्म करने के लिए जिले के मुतअद्दिद मकामात पर कार्रवाई अमल में लाई। ऑपरेशन के दौरान 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यूएपीए के तहत जिले में बुक किए गए मुलजिमों की जमानत को रद्द करने के लिए 16 दरख्वास्तें जमा कराई हैं। पुलिस ने शोपियान में यूएपीए मामलात की जमानतों को रद्द करने के लिए 13 जबकि अनंतनाग में 9 दरख्वास्तें जमा कराई हैं। पुलिस ने सोपोर में ऐसे 11 अफराद की निशानदेही की है जिनको अगरचे अदालत की तरफ से जमानत मिली है ताहम वो उन पर आयद शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग और अवंतीपुरा में भी पुलिस ने मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई ताकि दहशत पसंदी के निजाम का कलाकमा किया जा सके। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने अतीना बडगाम के जगदीश सिंह नामी एक साबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर का जुर्म साबित किया है, जिसने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी तारीख पैदाइश में कलम जनी करके गैर कानूनी तौर पर 2 साल की इजाफी नौकरी की थी। सिटी जज श्रीनगर की अदालत ने कसूरवार को 3 साल की कैद और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। भारतीय फौज ने गवर्नमेंट मिडल हाई स्कूल चौटाली बारामूला के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए इकदाम शुरू किए हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर फौज ने स्कूल के लिए अहम फर्नीचर और दीगर सामान अतिया के तौर पर देने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हजरत शाह असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर लोगों को मुबारकबाद दी है। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर के रडपुरा खानियार में खेल के मैदान को बढ़ावा देने से मुतल्लिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर और एमएलए हजरत बल सलमान सागर मौजूद थे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।